ایران سے مذاکرات یا جنگ؟ ٹرمپ نے آج قومی سلامتی اجلاس طلب کر لیا۔ میٹنگ میں نائب صدر جے ڈی وینس، خصوصی مندوب اسٹیو وٹکاف، وزیر خارجہ مارک روبیو، وزیر جنگ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی شرکت متوقع ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کسی فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جا سکے، نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جائیں۔ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے۔ ایران کے نیوکلیئر ذرات صرف امریکہ اور چین ہی بازیاب کر سکتا ہے، کیونکہ صرف انہی دو ملکوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ امید ہے ایران میں اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ ہماری مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قابیلات نے کہا ہے کہ غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات پوری دنیا اب سمجھ چکی ہے۔ ہم ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ اس معاملے میں جتنی دیر کریں گے امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانی پڑے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل میں پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ عباس اراغچی اور شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹے میں یہ دوسرا رابطہ ہوا۔ جوہری میزائلوں سے لیس امریکہ کی اوہایو کلاس آبدوز جبرا الٹرا بچ گئی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے مطابق یہ آبدوز امریکہ کے انتہائی خفیہ فوجی اثاثوں میں شمار ہوتی ہے۔ امریکی بحریہ نے کہا ہے جبرا الٹرا پہنچنے والی آبدوز اوہایو کلاس بیلسٹک میزائل آبدوز ہے، جسے بومر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیل پلیٹ فارم جوہری وار ہیڈ لے جانے والے بیلسٹک میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بحریہ کے مطابق یہ دورہ امریکہ کی صلاحیت اور نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مسلسل وابستگی کا مظاہرہ ہے۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی صدر نے ایران کی تازہ جنگ بندی تجویز کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے سی بی ایس کی رپورٹ کو گمراہ کن اور سنسنی خیز قرار دے دیا۔ ترجمان کے مطابق ایسی کراس ارائیاں علاقائی امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہیں۔ پاک سرزمین پر ایرانی طیاروں کی موجودگی کا کسی فوجی مقصد یا سیکیورٹی انتظام سے تعلق نہیں۔ مذاکرات کے اگلے ادوار کی توقع میں بعض طیارے اور عملہ عارضی طور پر پاکستان میں ٹھہرا۔ عالمی امن اور استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ فریقین کے ساتھ مکمل شفافیت اور باقاعدہ رابطہ برقرار رکھا گیا ہے۔ پاکستان مذاکرات کے لیے ذمہ دار سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایرانی اور امریکی طیارے اسلام آباد مذاکرات میں سفارتی عملے کی آمد و رفت کے لیے پاکستان آئے۔ امریکہ کا پاسداران انقلاب کے مالیاتی نظام پر نظر رکھنے کے لیے اہم اقدام، اہم معلومات فراہم کرنے پر $1.5 کروڑ انعام کی پیشکش۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مالیاتی میکانزم بارے معلومات دینے کے لیے انعام کا اعلان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے انصاف پروگرام کے تحت کیا گیا۔ معلومات حاصل کرنے کا مقصد ایرانی معیشت اور حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ معلومات کی تلاش میں ہے کہ پاسداران انقلاب اپنے دہشت گردوں، ملیشیا پراکسیوں اور شراکت داروں کو فنڈز اور مواد کیسے منتقل کر رہا ہے۔ امریکہ لین دین میں سہولت فراہم کرنے والے مالیاتی ادارے یا ایکسچینج ہاؤسز اور ان کے ملکیتی کاروبار جاننا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا افسردہ یورینیم کی موجودگی تک ایران جنگ کے خاتمے سے انکار۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ایران جنگ میں بہت کچھ حاصل کر لیا، لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایران کے پاس اب بھی افسردہ یورینیم موجود ہے جسے ایران سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ یورینیم افسردگی کے ایسے مراکز موجود ہیں جنہیں ختم کرنا ہوگا۔ اب بھی ایسے گروہ موجود ہیں جن کی ایران حمایت کرتا ہے۔ ایسے بیلسٹک میزائل بھی ہیں جنہیں وہ مزید بتانا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ابھی بہت کام باقی ہے۔ ایران میں رجیم چینج کے امکان پر بھی بات ہوگی۔
सदर ट्रंप के कल से 15 मई के दौरा चीन के लिए तैयारियां मुकम्मल। व्हाइट हाउस ने एलन मस्क को ट्रंप के दौरा चीन में शिरकत की दावत दे दी। व्हाइट हाउस ने एप्पल के चीफ एग्जीक्यूटिव टिम कुक को भी दावत दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एक व्हाइट हाउस अहदेदार का कहना है गोल्डमैन सॉक्स, ब्लैकस्टोन, ब्लैक रॉक और सिटी ग्रुप के अहदेदारान भी ट्रंप के वफ्द में शामिल हैं। 1 दर्जन से जायद आला कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल वफ्द सदर ट्रंप के साथ चीन जा रहा है। अमेरिकी सदर को उम्मीद है बीजिंग के साथ मुख्तलिफ कारोबारी मुआहिदे और खरीदारी के समझौते तय पाएंगे। ट्रंप के दौरे चीन से कबल अमरीकी फिजाइया के C-17 तैयारे बीजिंग पहुंच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर के दौरे चीन से कबल अमरीकी फिजाइया के ग्लोब मास्टर तैयारे बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। ये बड़े फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे ट्रंप के दौरे के लिए दरकार गाड़ियां, सिक्योरिटी आलात और लॉजिस्टिक सामान लेकर आए हैं। ये तैयारे अमरीकी सदर के दौरे के लिए सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का अहम हिस्सा होते हैं। सदर ट्रंप के दौरे को वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान पेचीदा ताल्लुकात के बावजूद सिफारती रवाबित की नई कोशिश करार दिया जा रहा है। हर 4 में से एक अमरीकी ने व्हाइट हाउस इशाइये में ट्रंप पर मुबैना कातिलाना हमला जाली करार दे दिया। अमेरिका में खबरों और मालूमाती वेबसाइट्स की रेटिंग जारी करने वाले इदारे न्यूज़ गार्ड ने 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी। सर्वे में 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। सर्वे में 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जाली करार दिया। उम्र रसीदा अमरीकी समझते हैं ट्रंप पर हमला असली था। 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने साजिशी नजरियात मुस्तरद करते हुए कहा ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले बेवकूफ हैं। अमेरिका ने चीन को तेल की तरसील में ईरान की मदद पर मजीद 12 अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमे खजाना का कहना है कि पाबंदियों में हांगकांग और मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम 4 कंपनियां शामिल हैं। ईरानी हुकूमत को मालियाती नेटवर्क से काटने का सिलसिला जारी है। अमरीका की जानिब से ये इक़दाम सदर ट्रंप के दौरे चीन से कब्ल किया गया। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी बहरान को हल करने में ताखीर के मनफी असरात 2027 तक जारी रह सकते हैं। सऊदी तेल कंपनी आरामको के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमीन अल नासिर ने इंटरव्यू में कहा हालिया दिनों में आबनाए हुर्मुज़ की बहाली से तेल मंडियों में फौरी पेशरफ्त खारिज अज़ इम्कान है। बैनुल-अक़वामी मंडियों को दोबारा मुतवाज़न और दुरुस्त करने के लिए कई माह दरकार होंगे। सप्लाई चेन में रुकावटों की वजह से आलमी मईशत नाजुक मोड़ पर है। रवां साल की पहली तिमाही में जारी तवानाई का झटका अब तक का सबसे बड़ा बहरान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में तेजी रिकॉर्ड की गई। 1000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,71,571 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 609 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,70,506 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज के तेवर एक बार फिर बदलने लगे। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का इम्कान नहीं। दूसरी तरफ मुल्क मैदानी इलाकों में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कराची भी गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में मौसम खुशगवार रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने महंगाई के दबाव में कमी और अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम की हिदायत की। मुलाकात में मारका हक के शहदा और मुसल्लह फ़ौज की पेशेवराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर कौमी दिफा पर गैर मुतसलसल अज़्म का इआदा किया गया। सदर जरदारी ने कहा कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी और सप्लाई चेन मुतासर होने के बावजूद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएं। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ अमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए हिकमत अमली से मुतालिक इजलास हुआ। इजलास में पॉलिसी मुसव्वदे पर गौर किया गया और शुरा ने आरा और तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने बरामदात पर मबनी सनत को मुल्क की तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए नागुज़ीर करार दिया। कहा, हुकूमत की तवज्जो बरामदात में इजाफे और सनतों को सहूलियात फराहम करने पर मरकूज़ है। बरामदात में इजाफे के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों और सनतों को सहूलियात फराहमी का लाहे अमल तैयार किया जाए। ऐसे नए कारोबारों और सनतों के फ़रोग के लिए भी वफाकी हुकूमत ने किफ़ायतशारी मुहिम के तहत ईंधन की बचत के लिए नाफिज पाबंदियों में तोसी कर दी। काबीना डिवीजन की जानिब से किफ़ायतशारी मुहिम में 13 जून तक तोसी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फ्राहमी में 50% कमी बरकरार रहेगी। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने अमल दरामद कमेटी की सिफारिशात पर तोसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल मनसूबे का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की हॉस्टल में कायम मॉडल रूम को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। कहा, रवां बरस से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग NPA में कराई जाएगी। प्रोफेशनल कोर्सेज जदीद खतूत पर इस्तेमाल किए जाए। मोहसिन नकवी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम और स्विमिंग पूल का भी मुआयना किया। एकेडमी में सोलर सिस्टम मुनासिब करने की हिदायत। अटक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से बड़ी तबाही टल गई। थाना जन की हदूद में वाक़ खुशहालगढ़ ज्वाइंट चेक पोस्ट पर खुदकश हमला नाकाम बना दिया गया। एक चौराहा शहीद। पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने नाकाबंदी की जानिब बढ़ने वाले एक मशकूक शख्स को देखकर फौरी तौर पर ललकारा और मौसर हिकमत अमली अपनाई। इस पर खुदकश हमलावर पुलिस नफरी तक पहुंचने में नाकाम रहा और फासले पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस दौरान मनकूर के रिहायशी लियाकत नामी शहरी ने भी गैर मामूली जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। धमाके की जद में आकर शहीद हुआ। पाकिस्तान बनो पुलिस चौकी पर हमले के जवाब में फैसला कुन कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, बनो पुलिस चौकी पर हुए हमले इंतहाई अफसोसनाक है। भारत की सरपरस्ती में ये प्रॉक्सी वॉर अफगानिस्तान के जरिए लड़ी जा रही है। इतनी एहसान फरामोशी इंसानी तारीख में कभी सामने नहीं आएगी जितनी ज़मीन फरोशी अफगानिस्तान ने की। पाकिस्तान ने मार का हक में जो कुछ भारत के साथ किया वही अफगानिस्तान के साथ होगा। हम इस दहशतगर्दी के नतीजे में बहने वाले खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। रावलपिंडी में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। अडयाला जेल और इतराफ का इलाका रेड जोन करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक अडयाला जेल और हसास तंसीबात के इतराफ पाबंदियां आयद रहेंगी। हर किस्म के जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी होगी। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी वाक़या 144 नाफिज कर दी गई। जिले इंतजामिया का कहना है कि दफा 144 के तहत किसी भी किस्म के इज्तिमा की इजाज़त नहीं है। किसी भी किस्म का इज्तिमा कानून की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। हमारे शहदा हमारा इफ्तिखार है। MPA हादिया नवाज बहरानी की लेफ्टिनेंट इस्मतुल्लाह बंगलजई शहीद के घर आमद। हादिया नवाज बहरानी का लेफ्टिनेंट इस्मतुल्लाह के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार और फातह खानी। हादिया नवाज बहरानी ने लेफ्टिनेंट इस्मतुल्लाह शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया। शहीद लेफ्टिनेंट इस्मतुल्लाह बंगलजई के अहल खाना के सब्र इस्तकामत को सराहा।
बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त बरतानवी हुक्मरान जमात के गले का कांटा बन गई। लेबर पार्टी की बदतरीन नताइज पर वज़ीर आज़म सर किर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत कई अहम अराकीन ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया वो ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन दी। इस्तीफे का मुतालबा करने वाले लेबर अराकीन पार्लियामेंट की तादाद 70 हो चुकी है। नए पार्टी लीडर के इंतखाब की तहरीक के लिए 81 अराकीन की हिमायत दरकार है। वज़ीर आज़म सर किर स्टारमर का कहना है कि हुकूमत से कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन अहम सियासी फैसलों में उन्होंने दुरुस्त रास्ता इख्तियार किया। लेबनान में झड़पों के दौरान मार्च के आगाज से अब तक 18 फौजी एहलकार हलाक हो चुके हैं। इसराइली फौज ने लेबनानी सरहद के करीब झड़प में इसराइली एहलकार की हिलाकत की तस्दीक कर दी। यह भी दावा किया जनूबी लेबनान में 120 मीटर तवील सुरंग को तबाह किया है। सुरंग को तबाह करने के लिए 20 टन बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। कतरी LNG से भरा टैंकर आबने हरमस अबूर करने की कोशिश के बाद वापस मुड़ गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर पर परचम बरदार टैंकर आबने हरमस अबूर करने की कोशिश के बाद वापस मुड़ा। मालियाती डेटा फ्राहम करने वाले इदारे LSEJ के मुताबिक जहाज ने एक हफ्ता कबल रॉस लफान से LNG लोड की थी। जहाज अब भी अपनी मंजिल पाकिस्तान की बंदरगाह पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम जाहिर कर रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नर्सिंग डे मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद नर्सों की खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। पाकिस्तान में सेहत के शोबे को तकरीबन 15 लाख नर्सेस की कमी का सामना है। पाकिस्तान में नर्सिंग के शोबे की बुनियाद 1949 में बेगम राना लियाकत अली खान ने रखी। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 100 मरीजों के लिए सिर्फ एक नर्स दस्तयाब है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के ज़ेर-ए-एहतमाम नर्सों का आलमी दिन हर साल 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यौम पैदाइश है। शाहीन अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट का संग मील अबूर कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने बांग्लादेश के खिलाफ जारी टेस्ट में यह संग मील अबूर किया। शाहीन अफरीदी ये संग मील अबूर करने वाले पाकिस्तान के 5वें फास्ट बॉलर हैं। उनसे काबुल वसीम अकरम, वकार यूनस, शोएब अख्तर और उमर गुल ये एजाज हासिल कर चुके। इससे काबुल 3 पाकिस्तानी स्पिनर्स भी ये कारनामा सर अंजाम दे चुके हैं, जिनमें शाहिद आफरीदी, सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल शामिल हैं। और पाकिस्तान ज़िम्बाब्वे वुमेन T20 सीरीज का कल से आगाज होगा। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रहनुमाई कर दी गई, जबकि वनडे सीरीज में सब खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया और दोनों टीमों ने नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस भी की है। वनडे सीरीज में सब खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। फातिमा सना ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हुए कहा कि वनडे सीरीज में सब खिलाड़ियों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी।